Hello friend, how are you? I hope you would be fine. In last Czech lecture we started with the planning and I think we have completed definitions of planning including its features and importance of planning. Now we are going to start with the limitations of planning. Okay. Total see beta before starting this first of all let me tell you that each and everything have its pros and cons. Pros and cons means there are benefit also together with limitations also. Similarly, planning is not always good. In fact, from the point of view of business environment, planning sometimes may carry some of the limitations with it, and there we are going to study total six limitations. Let me name six limitations. First is planning leads to rigidity. Second is planning may not work in a dynamic environment. Third is planning involves huge cost. Planning involves huge time. Planning may not guarantee success, right? And planning reduces creativity. These are the limitations of planning which we are going to discuss here. See how in an organization a well-defined plan is strong with specific goals to be achieved within a specific time period. These plans then decide the future course of action and manager may not be in a position to change it. यहाँ प्लीज आप ध्यान से देखिए managers need to be given more flexibility to be able to cope up with the changed circumstances. होता क्या है बेटा देखो एक बार अगर प्लानिंग करी जाती है उस पे इम्प्लीमेंट करना हो सकता है कहीं बार इतना आसान ना हो. सर ऐसा क्यों होता है? रीजन बीइंग क्योंकि जब प्लानिंग होती है बेटा तब हम फ्यूचर को एस्टिमेट करते हैं but we are not sure that future is going to be as it is what we have thought about it. There may be some kind of things which may be changed in future. So to cope up with that circumstances, the plans should be able to incorporate changes as well. It means that whenever you are drafting the plan, there should be kept some kind of flexibility in it. Because if plans are more strictly followed, it may be possible कि future में वो plan follow ही ना हो पाए क्योंकि circumstance change हो जाए. For an example, suppose if you have thought to study from 8 to 10 at night, but maybe possible there is an electric cut off in your city for some days. At the same time when you have planned for studies. Now will you be able to study from 8 to 10? No. Why? Because it will be not possible for you to study if you are not having any backup of it. इलेक्ट्रिसिटी का अगर बैकअप नहीं है जनरेटर इन्वर्टर नहीं है तो फिर बहुत ही मुश्किल हो सकता है आपके लिए. फिर क्या करें सर? चेंज करो, टाइम चेंज करो, प्लानिंग में कुछ चेंज करो. इसलिए यहाँ पर बोला है कि प्लानिंग से रिजिडिटी बढ़ती है यानी कि सर्कमस्टेंस चेंज होने के बाद उन प्लान्स में चेंज कर पाना इतना आसान नहीं होता है. सारी चीजें देख करके वापस से प्लान बनाने की जरूरत होती है. कई बार वो प्लान वेस्ट हो जाता है, कई बार अमेंडमेंट पॉसिबल हो पाते हैं. पर कुछ भी हो फ्लेक्सिबिलिटी तो कम होती है. हम हमारे मन से उतना अच्छे से चीजों को चेंज नहीं कर सकते जितना प्लान नहीं होने पर कर पाते, राइट? तो मैनेजर्स को कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि वो सर्कमस्टेंस चेंज होने के साथ साथ अपने प्लान्स को भी चेंज कर पाए. वेरी गुड. सेकंड पॉइंट इज प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट. डायनामिक मींस व्हिच इज एवर चेंजिंग. प्लान चेंज्ड एनवायरनमेंट में कई बार काम नहीं कर पाते. क्यों सर? फिर से वही बात बेटा, ये बहुत याद अच्छे से याद रखना कि प्लानिंग जब भी होती है ना उसमें कुछ अजम्पशन लिए जाते हैं. अजम्पशन यानी कुछ चीजें मान लेते हैं हम. जैसे हम बोलते हैं ना मान लो कि ऐसा हुआ तो क्या करेंगे, तो ऐसे हम फ्यूचर को मान लेते हैं कि मान लो आने वाला साल जो है वो पिछले सालों जैसा ही हुआ तो क्या क्या चेंजेस हमें हो सकते हैं. जैसे इन दिस ईयर 1920 आई मस्ट से 1920 तो गया, 2021 पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है. किसका? कोरोना वायरस का, है ना, द ट्रेंडिंग इशू. सपोज जितने भी प्लान करे थे बिजनेस एंटरप्राइज में, अगर उसमें कोई चेंजेस करने या इनकॉर्पोरेशन की इतनी ज्यादा एडजस्टमेंट करने की अगर गुंजाइश नहीं है तो वो प्लान्स जो होंगे वो वेस्ट हो सकते हैं. बिकॉज उन्होंने एक अजम्पशन ले लिया होगा कि एनवायरनमेंट में कोई चेंज इस तरीके से नहीं आया, कुछ नेचुरल कैलेमिटी इस टाइप की नहीं आने वाली है, राइट? तो
अब तो सर एनवायरनमेंट चेंज हो गया, सारे एनवायरनमेंट चेंज हो गए। आप देखिए लीगल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सारे एनवायरनमेंट में चेंज, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में चेंज आ गया, राइट। ये सारे के सारे एनवायरनमेंट में जो चेंज आया है इसका बिजनेस इंपैक्ट पड़ेगा, बिजनेस के ऊपर बहुत गहरा इंपैक्ट पड़ेगा, और हो सकता है कि आपके पहले से बने हुए प्लान इस एनवायरनमेंट में काम नहीं कर पाए। वही चीज यहाँ पर आ रही है, प्लानिंग में नॉट वर्क इन ए डायनामिक एनवायरनमेंट। द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू कॉन्स्टेंटली अडॉप्ट इटसेल्फ टू द चेंजेस। It becomes difficult to accurately assess future trend। फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको assess करना, accurately predict करना इतना आसान नहीं होता है। So उसके बाद if economic policies are modified or political conditions in the country are not stable or there is a natural calamity, तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। वो पहले से जो बनाए हुए प्लान है वो डायनामिक एनवायरनमेंट हो सकता है काम ना करे। ओके, प्लानिंग reduces creativity by some। सी बेटा, basically the plans are being drafted by the managers and their subordinate are required to implement on this plan. Now, while implementing the plans, subordinate may not use their own mind। सर ये तो गलत बात है, उनको तो अपना माइंड यूज करना चाहिए। बेटा जब उनको ऑर्डर मिल रहा है तब वो अपना माइंड अगर ज्यादा यूज करेंगे तो हो सकता है कि मैनेजर से उनको कुछ दो चार बातें सुननी पड़े। तो सर एम्प्लॉय करेगा क्या, वो चुपचाप जैसा प्लान करा गया है, जो उसको बताया गया है, जो डायरेक्शन दी गई है उसको फॉलो करेगा। सर अपना दिमाग लगाना बंद कर देगा कि हाँ, कहीं हद तक बंद कर देगा, क्योंकि हो सकता है उसके माइंड में बहुत सारे अच्छे आइडियाज आ रहे हो, जो क्रिएटिव हो, जो अच्छे हो, इनोवेटिव आइडियाज हो, पर उस टाइम पे वो उन आइडियाज को डस्टबिन में डाल सकता है इंस्टेड ऑफ इम्प्लीमेंटिंग ऑन दैट। क्यों सर, कि ऑलरेडी मैनेजर्स ने प्लान तैयार करा है, ही कांट गो बियॉन्ड द गिवन थिंग्स टू हिम। जो गिवन टास्क है, जो गिवन ऑर्डर से, जो गिवन इंस्ट्रक्शन है, उसके बियॉन्ड वो नहीं जा सकता। तो उससे क्या हुआ सर, क्रिएटिविटी जो है वो कम हो गई। देखिए आप, as a consequence, middle management and other decision makers are neither allowed to deviate from plans nor they are permitted to act on their own। Thus, much of the initiative और creativity inherent in them, जो उनके पास creativity है, employees के पास जो subordinate के पास creativity है, initiative है, वो सारे के सारे either it gets lost or gets reduced। Most of the time employees do not even attempt to formulate plan। वो अपने plan बनाना ही बंद कर देते क्योंकि उनको already plan दे हुए, they only carry out the orders। Thus planning is the way, in a way reduces creativity since people tend to think along the same line as other। जो जैसा दूसरे सोच रहे उनके लाइन में सोचना चालू कर देते हैं। इसका मतलब दे एग्री फॉर द सेक ऑफ एग्रीमेंट। हाँ हाँ करते हैं वो, ठीक है, यस सर, यस सर, यस मैम, यस सर, यस मैम। तो उससे क्या होगा, उससे वो अपना माइंड लगाना बंद कर देंगे, जैसा उनको डायरेक्शन दी गई है उसको ही फॉलो करते जाएंगे। ऐसा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में होता है, राइट। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। सर व्हाई प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट? हम तो प्लानिंग करते हैं ऐसे कि कुछ पता ही नहीं पड़ता है कि कहाँ पर कॉस्ट लगा। बेटा आपका प्लान, आपके प्लान करने में और जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं बड़े बड़े, उनके प्लान करने में काफी अंतर होता है। Whenever an organization is planning for a coming year, financial year, coming period, maybe of 2 months, 3 months, 4 months, 5 months, 6 months, they carry it with a very precocious manner। How sir? They first of all they do preliminary investigations। They see whether the facts or information available to them are accurate or not। क्योंकि बेटा प्लान करने के लिए उनको क्या चाहिए, पूरा डेटा चाहिए, पूरा डेटाबेस इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन चेक भी तो करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन लेके आओ, फिर उसको चेक करोगे सही है कि नहीं। फिर एक्सपर्ट्स को बुलाओ। एक्सपर्ट कौन से हो गए, टेक्निकल, लीगल एक्सपर्ट, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, सीए हो गया, सीएस हो गया, इनको बुला करके इनकी कंसल्टेंसी लेकर के फिर प्लान बनते हैं। तो सर इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारा बेटा खर्चा आता है, और बहुत सारा खर्चा आना ही एक प्लानिंग की सबसे बड़ी लिमिटेशन हो सकती है। ओके, बोर्ड रूम मीटिंग वगैरह होती है, उसमें भी खर्चा हो जाता है, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को बुलाना पड़ता है, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होती है, प्लानिंग करने के पहले इन्वेस्टिगेशन होती है, इसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। many a time you may think that while planning about studies you may not even get the time to study। कई बार ऐसा होता है ना कि आप प्लानिंग करते रहते हो कि कब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इतने में तो वो टाइम ही निकल जाता है, फिर आपको लगता है चलो कल से चालू करेंगे, है ना। तो ये क्या था, ये प्लानिंग करते करते आपका टाइम चले गया, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। आपने इम्प्लीमेंटेशन के लिए टाइम बचा ही नहीं, जितना आपने टाइम प्लानिंग में खराब कर दिया। ओके, so time there is not much time left for implementation। planning does not guarantee success। के सब करने के बाद भी, in spite of doing all these things, प्लानिंग करने के बाद भी गारंटी नहीं है कि आपको सक्सेस मिलेगा कि नहीं।
सर क्या बात कर रहे हो, इतनी सारी प्लानिंग करी, कॉस्ट इन्वॉल्व करा, टाइम इन्वॉल्व करा, सब कुछ करा, फिर भी गारंटी नहीं है। नहीं बेटा, आप देखो आज बहुत अच्छे से प्लान करो, आप स्टडीज कैसे करनी है, आप स्टडीज इसके अकॉर्डिंग कर भी लो, फिर तब भी क्या भरोसा कि आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो गए, राइट। सर ये तो आप डीमोटिवेट कर रहे हो, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ बेटा कि प्लान जो बने हैं वो सही है कि नहीं, इफेक्टिव है या नहीं, चेंज एनवायरनमेंट में काम करेंगे या नहीं, और चलो अच्छे हैं, इफेक्टिव है, चेंज एनवायरनमेंट में काम कर भी सकते हैं, तो भी क्या उससे सक्सेस मिलेगा, जो आपने टारगेट फिक्स करा है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो डिपेंड करता है दूसरी चीजों पर भी, राइट। तो प्लानिंग करने के साथ साथ हम ये नहीं बोल सकते कि इन प्लेस प्लानिंग से हमें सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, राइट। सो प्लानिंग हमेशा ये गारंटी नहीं दे सकता कि आप सक्सेस हो। हाँ ये बात जरूर है कि प्लानिंग से सक्सेस की जो परसेंटेज, सक्सेस का जो पॉसिबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, वो कई हद तक बढ़ जरूर जाती है। तो प्लानिंग करना बुरी बात नहीं है, पर कुछ कुछ इसके साथ लिमिटेशंस भी है, जैसे हर किसी चीज के साथ होती है। तो सर हम प्लानिंग करें कि नहीं, हमेशा बेटा जब भी काम करो प्लानिंग करके ही करो, क्योंकि हो ना हो प्लानिंग आपकी हेल्प ही करेगी, प्लानिंग आपको सही तरीके से गाइड करेगी, प्लानिंग से बहुत सारी चीजें जो है वो सही होती, जो हमने पहले पढ़ चुके थे इंपॉर्टेंस ऑफ फीचर्स, राइट। तो यहाँ पर हमारा प्लानिंग के ऊपर लिमिटेशंस का जो टॉपिक था वो खत्म होता है। तब तक आप बेटा, जब तक हम नए लेक्चर में मिलें विद न्यू टॉपिक, अब अपना अच्छे से ध्यान रखो, खूब अच्छे से पढ़ते रहो, एनसीईआरटी आप अच्छे से पढ़ो, पॉइंटर्स याद करो, रीडिंग बेटा बहुत अच्छे से जरूरी है, आप हो सके तो एक दो बार रीडिंग कर लेना, राइट। तो लेट्स मीट नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर, ओके, टिल दैट टाइम टेक केयर, बाय बाय।